اور جنات اور اثرات ہمارے اوپر ہو گئے ہیں. جادو ہو گیا، جنات ہو گئے، اثرات ہو گئے. پھر انہوں نے جادو، جنات، اثرات توڑوانے کی بہت کوشش کی. بکرے دیے، چیزیں دیں، پیسے دیے، مال دیے، بہت کچھ دیا، لیکن فائدہ نہ ہوا. ایک دفعہ ایک جگہ جانے کا موقع ملا. ہم اس سے کہنے لگے کہ ہمارے اوپر جادو، جنات، اثرات اور بندشیں بہت زیادہ، فلاں کو اتنے پیسے، فلاں کا اتنا کیا، فلاں کا اتنا کیا، اتنا کیا. تو کشف کی دنیا میں کسی نے دیکھا اور اللہ نے اس کے سامنے سے پردے ہٹائے کہ تیرے گھر میں وہ قرآن پڑھا ہے جس کو تو نے پڑھا نہیں، اس کی بد دعائیں تجھے کھا رہے ہیں، اور اس کی بد دعائیں اور آہیں اور سسکیاں ہیں جس کی وجہ سے تیرے گھر میں ظلمت اور نحوست ہے، بیماری اور پریشانی ہے. اس کی وجہ سے قرآن ہے جس قرآن سے تیرا تعلق نہیں ہے، جس قرآن سے تو نے تعلق نہیں بنایا. قرآن ہے. ایک کیس میرے پاس آیا بہت پرانا. کہنے لگے ہمارے گھر میں سسکیوں کی آواز آتی ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اور قرآن کی بد دعائیں تھیں. کتنے لوگوں نے قرآن کی اس سسکیوں اور بد دعاؤں کی وجہ سے پیسے لیے، ان سے چیزیں لی کہ آپ کے گھر میں جنات ہیں اور جادو ہے، کوئی پریاں ہیں، کوئی دیو ہے، کوئی کالی چیزیں ہیں. وہ نہیں تھا، وہ قرآن تھا. قرآن تھا، اور قرآن کی وجہ سے ان کے گھر میں رونے کی آوازیں آتی تھیں، سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں. قرآن کی وجہ سے رونے کی آوازیں آتی تھیں اور سسکیوں کی آوازیں آتی تھیں، قرآن کی وجہ سے. اور قرآن بد دعائیں دیتا ہے، اور قرآن دعائیں دیتا ہے، اور قرآن پکڑواتا ہے. حدیث کے الفاظ کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور قرآن چھڑواتا ہے. قرآن نجات کا ذریعہ ہے، اور قرآن جہنم میں لے جانے کا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کہتے ہیں میری وجہ سے کئیوں کو ہدایت ملے گی اور کئی خود گمراہ ہو جائیں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کی سسکیاں ہیں، اور جب اس گھر میں قرآن پڑھا گیا سسکیاں ختم ہو گئیں. کہنے لگے ہم نے تو اس رونے اور سسکیوں کے لیے دنیا کے سارے معالج اور علاج اور بڑے بڑے ٹونے کر لیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی نفع نہیں ہوا. کوئی نفع نہیں ہوا. قیامت کا دن ہوگا. سرکار کا فرمان کا مفہوم ہے سورۃ ملک تبارک الذی. یہ اللہ کے سامنے جھگڑا کرے گی، یا اللہ یہ مجھے بندہ پڑھتا تھا، یا پھر مجھے قرآن سے نکال دے. الفاظ پہ غور کریں. یا مجھے قرآن سے نکال دے، یا میرا اللہ، یا پھر اس کی بخشش کر دے. اور فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس سورت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش کریں گے جو روزانہ مغرب کے بعد سورت ملک پڑھے گا. یہ تو ایک سورت کی کیفیت ہے، یہ تو ایک سورت کی حالت ہے. سارے قرآن کا کیا کمال ہوگا اور سارے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی؟ سوچے تو صحیح. ختم قرآن ہے آج تسبیح خانے کا، 27 کی رات ہے، اور تسبیح خانے میں قرآن بہت پڑھا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا قرآن اور اخبار میں کیا فرق ہے؟
अखबार रोज आता है, आज का अखबार कल का पुराना हो गया। और कुरान जिंदगी में एक दफा लिया जाता है या 2 दफा लिया जाता है। आज भी प्रेस कुरान बहुत ज्यादा छाप रहे हैं, कहां जाता है? जिन्नात पढ़ते हैं और बहुत ज्यादा ले जाते हैं। एक तो कुरान का पढ़ने का ज़ौक खत्म हो गया, दूसरा कुरान कोई अखबार तो नहीं है कि रोज नया अखबार होता है, रोज नई चीज होती है। कुरान तो एक दफा लिया जाता है, 2 दफा लिया जाता है, 4 दफा लिया जाता है। प्रेसों की प्रेस कुरान छाप रहे हैं, आज भी कहां जाता है? मैंने कई पुराने बाबे, एक निजामुद्दीन साहब होते थे बाबा जी मिठाई वाले, कई लोगों से मैंने तस्करे पूछे मिठाई की दुकान। उसने कहा जी मिठाई तो खाने का ज़ौक खत्म हो गया है, नमकीन चीजें लोग ज्यादा खाते हैं, अब पहले मीठी चीजों का ज़ौक खत्म हो गया है, लेकिन हमारे यहां मिठाई बिकती है और हमें एहसास होता है ये ले जाने वाला इंसान नहीं है। मिठाई बहुत खाता है जिन्नात, और कुरान जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं। अंदरून सिंध में रीछ और कुत्ते का मुकाबला हो रहा था। हमारी स्पीकर की टीम लगता है बेतवज्जे बैठी है, बेतवज्जे बैठी है, कुछ सो रही है। रीछ और कुत्ते का मुकाबला हो रहा था। उसूल यह होता है कि रीछ बांध दिया जाता है और 2 कुत्ते उस पर छोड़ दिए जाते हैं, और बाजों का ताकतवर कुत्ता हो तो एक कुत्ता होता है, एक कुत्ता होता है। दोनों कुत्ते उसे, और कुत्ते की दुम अक्सर काट दी जाती है कि रीछ के हाथ में कुत्ते की दुम आ जाती है। कुदरत का निजाम यह है कि यह रीछ और कुत्ते की जंग हो रही थी। होते होते अचानक रीछ छूट गया, उसका रस्सा टूट गया और वो दौड़ा, और दौड़ के साथ मस्जिद थी, मस्जिद में गया और सर पे कुरान लेके आया, और दोनों निचली टांगों से चलता चलता सर पे कुरान लेके आया, और लोगों की चीखें निकल गई, हाय निकल गई। कहता था, ए कुरान के मानने वालों, बेजुबानों को जलील ना करो, बेजुबानों को जख्मी ना करो, बेजुबानों की बोटियां बोटियां ना करो। हमारी दिल में कुरान की इतनी अजमत है। रीछ का पैगाम यह थे, रीछ का पैगाम था ये कि तुम्हारे दिल में इस कुरान की कोई अजमत नहीं। एक पुरानी बस्ती थी, गांव था, मैं मस्जिद में गया, जुमे का दिन था, मेरे साथ कुछ हजरात और भी थे। मैंने कहा मस्जिद को साफ करते हैं। मस्जिद के सहन में एक चटाई पड़ी थी, वो चटाई उठाई तो नीचे और थी, वो मिट्टी हुई पड़ती हो चुकी थी, वो उठाई तो नीचे और थी, यानी चटाई मिट्टी हो गई तो ऊपर और बिछा दी। साथ ही सामने गांव के चौधरी और बड़े का घर था। मुझे याद है उस वक्त करोला 86 खड़ी थी, और करोला 86 नई नई आई थी, 86 मॉडल करोला नई नई आई थी, मुझे याद है। और फिर नीचे से कीड़े मकोड़े बिच्छू चीजें निकलने लगी। सफों के नीचे उन्होंने अपनी जगह बनाई हुई थी, और जब कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर कुत्ता था, गर्मी सख्त थी, तो अंदर कुत्ते ने ठंडक की वजह से जमीन को ऐसे खोद के मिट्टी को उसने जगह बनाई हुई थी। कुत्ता भाग गया। अब मैंने कहा मस्जिद की सफाई करें। जब मस्जिद की सफाई की तो मैं कुरान पाक की तरफ गया, तो कुरान पाक में भीड़ों का छत्ता आया, भीड़ों का छत्ता था, भीड़ों ने छत्ता बनाया हुआ था। क्यों? आज तक किसी ने कुरान को हाथ नहीं लगाया। और कुरान पाक की नीचे जगह पे एक कुरान दूसरे कुरान पे चढ़ा हुआ था, उसके नीचे जगह थी। मैंने जो देखा ना, नीचे सांप है।
सांप है। और कुछ देर के बाद मैंने महसूस किया मेरी टांगों में कोई चीज लिपट रही है, मेरी टांगों में सांप लिपट रहा था। हमने जाके मस्जिद के निजाम को खराब कर दिया। कोई चीज कहां छुपी हुई थी, कोई कहां छुपी हुई थी, कोई कहां छुपी हुई थी। सफाई के बहाने हर चीज निकलना शुरू हो गई। पांव वाले मैंने सांप को मार दिया। उस सांप के लिए मैंने उसको पहले कीला, और सांप को अगर कीलना हो तो इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवाइदा। सूरत वस्समाई वत्तारिक की आखिरी 3 आयात, ये 11 दफा पढ़ के मैंने दम किया, और फिर मैंने उसको छोड़ा, दम हटाया। क्यों? बेबस करके नहीं मारना, ख्याल कर। उसके बाद फिर उसको मारा। अच्छा, ये वाकया हुआ हो गया। कुछ ही अरसे के बाद उस गांव का जो बड़ा था, उसके घर की खवातीन मुझसे दवाई लेने आई। जी हम वहां से आई हैं फलां। मैंने कहा हाँ वो सामने मस्जिद है, ऐसे 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 कह रहे। हाँ, मैंने कहा उनकी गाड़ी करोला 86 है। उसने समझा इसको कश्फ होता है। आपको यहां तक ही पता चल जाता है? मैं नहीं, मैं आया था। उन्होंने पहुंची सरकार है। और उनके घर में जो मसाइब और मुसीबतें, और उनके घर में जो तबाही, और उनके घर में जो तकलीफें, और उनके घर में जो मुश्किलात, और उनके घर में नाकामियां कैसी थी? ऐसी जैसे तहस नहस कर दिया चीज, ऐसी थी। कुरान को देखना सवाब, कुरान का सुनना सवाब, कुरान का रखना सवाब। कुरान से दोस्ती। रमजान कुरान की याद दहानी है। रमजान कुरान से दोस्ती और ताल्लुक है। जो कुरान पाक उठाए उसे चूमे, रोज एक सफा पढ़ ले, एक वर्का पढ़ ले, एक रुकू पढ़ ले, आधा पारा पढ़, एक पाव पढ़ ले। अगर कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान उठाए, और कुरान उठाने के बाद उसमें उंगली फेरे, और उंगली फेरते फेरते कुरान के ऊपर उंगली फेरे, और उंगली फेरते फेरते या तव्वाब या करीम पढ़े। अल्लाह पाक उसके बख्त, बरकत, इज्जत, दौलत में इजाफा करेगा। और जिसको कुरान पढ़ना आता है वो कुरान पढ़े, कुरान सुने, कुरान से दोस्ती, कुरान से ताल्लुक। कुरान के साथ अल्लाह ने निस्बत कायम की है। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर से बीमारियां, तकलीफें, परेशानियां दूर होती हैं। एक दुर्वेश से हजरत बीनपुरी रहमतुल्लाह अलैह इलाहाबाद लियाकतपुर के साथ हजरत के मुरीदीन थे। हजरत को लेके घर हजरत दुआ फरमा दें। अहले हदीस हजरत के सारे मुरीद थे। हजरत दुआ फरमा दें। हजरत एक घर में दुआ के लिए तशरीफ ले जाए गए, फिर दूसरे गए, तीसरे में, चौथे में। हजरत ने फरमाया, फकीरों, जब से कुरान छोड़ा है तुम्हारे घर में जिन्नात की गुजरगाहें बनी हुई हैं, लांघे बने पेन, गुजरगाहें बनी हुई हैं, और जिन्नात खबीस शयातीन तुम्हारे घर में आते हैं, बीमारियां छोड़ के जाते हैं, दुख छोड़ के जाते हैं, तकलीफें छोड़ के जाते हैं, गिलाजतें, खबासतें, झगड़े, नफरतें, बेबरकतियां छोड़ के जाते हैं। और फरमाया कैसे? कहा कि गंदी नाली में आपने देखा होगा गर्मियों में कुत्ता ठंडे पानी की वजह से गंदी नाली में बैठा हो, और वो कुत्ता आपके सारे घर में फिरे, तो बोलो क्या गंदगी घर में होगी? हाँ, उस कुत्ते की गंदगी नजर आती है, इस खबासत और गिलाजत शैतानों की नजर नहीं आती। जब से कुरान छोड़ा है, कुरान के साथ दोस्ती हो, कुरान के साथ ताल्लुक हो, कुरान को उठाया जाए और कुरान को पढ़ा जाए। मोबाइल पे ना पढ़ें, कुरान को कागज वाले कुरान पे पढ़ें। मजबूरी कहीं है मोबाइल पे पढ़ लेना, कोई हरज नहीं, कागज में कुरान पे पढ़ें। यकीन जानिए, ये निस्बतों के साथ जहां आया है ना कुरान अर्श से, ये फिर कहेगा मौला ये अकेला नहीं जाऊंगा मैं। कुरान अकेला नहीं जाता। हदीस में आता है, मफहूम है, एक बंदा कब्र में जाएगा,
और उसके साथ कोई नहीं होगा, दाएं बाएं कोई नहीं होगा, सारे उसको छोड़ के चले जाएंगे। अचानक मुनकिर नकीर, मुनकिर नकीर आएंगे और एक मुश्किल कुशा आ जाएगा उसके पास। एक जवान आएगा, पूछेगा कौन? सारे अम्मा अब्बा बहन भाई साथी जिंदगी में सब छोड़ गए, तू कौन? कहा मैं कुरान हूं। तू उठते पढ़ता था, सुनते पढ़ता था, बैठते पढ़ता था, जागते पढ़ता था, तूने मुझे दुनिया में नहीं छोड़ा, मैं तुझे आखिरत में कब्र में नहीं छोड़ूंगा और हर मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब दूंगा। और अगर मुनकिर नकीर दाएं तरफ आएंगे ओट बन जाऊंगा, बाएं तरफ आके अजाब देंगे ओट बन जाऊंगा, सर की तरफ अगर बलाएं आएंगी ओट बन जाऊंगा, पांव की तरफ अगर नुकसान करेंगे हिफाजत करूंगा ऊपर नीचे से। वो मुनकिर नकीर के सवालों का जवाब देगा, हिफाजत का सामान बनेगा। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, फरमाया एक सिराने बैठेगा एक जवान खूबसूरत और ये पूछेगा तू कौन? कहा कुरान हूं, कुरान हूं। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। कहने लगे दरिया ने रुख पलटा। दरिया रुख पलटता है, पलटता सदियों के बाद है या सालों के बाद। ट्रकों के ट्रक पत्थर के डाले, जालों में बना बना के डाले, पर पानी की ताकत अल्लाह की ताकत है। आखिरकार दरिया का रुख शहर को उठा लिया सारा, अब कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया कब्रिस्तान की तरफ आया। दरिया, लोगों ने अपनी कब्रों से मैयतें निकालनी शुरू की। दरिया का उसूल है नीचे से पानी काटता है, आखिर वो जमीन नीचे गिर जाती है। मैंने जाके राजनपुर से आगे रुझान है, रुझान से एक जगह मैंने देखा दरिया काट रहा था, रुख बदला। कोई आज से 30 साल पहले ये मैंने मंजर खुद देखा है। और मैं जहां खड़ा था ना, बंदा कहने लगा कहां खड़े हैं? नीचे से पानी ने काट लिया, अनकरीब ये सब नीचे गिर जाएगी। नीचे पानी ऐसे काटता है जमीन को, उसके बाद फिर मिट्टी गिरती है, फिर आगे बढ़ता है। कहने लगे हमारे यहां कहीं से पठान आ गया, पख्तून कहीं से आया, गरीब आदमी था, मस्जिद में आके रहने लगा। लोगों ने उस पठान का नाम रख दिया भंगी खान। भंगी कहते हैं जो गंदगी घूं गिलाजत पखाना उठाए, उसका नाम भंगी खान रख दिया। कोई रोटी दे देता था, कोई कपड़ा दे देता था, सारा दिन कुरान पढ़ता था और वुजू खाने पानी भरता था, सफे अजान और मस्जिद सफाई, बस ये खिदमत थी उसकी। पता नहीं कहां का था वो पठान। मुझसे मलिक साहब कहने लगे रहमतुल्लाह अलैह, कहने लगे कि भंगी खां भी मर गया, बूढ़ा हो गया था, मर गया। सब ने कहा कि लोग अपनी अपनी मैयतों को संभाल रहे हैं, भंगी खां लावारिस है, उसकी मैयत को भी संभाला जाए। अभी हम ये सोच ही रहे थे तो इलाके का बड़ा, उस इलाके का बड़ा एक था, बहुत बड़ा आदमी था, बड़ा नाम था उसका, उसके बेटे आ गए।
चचा अब्बा की मैयत के करीब पानी पहुंचने वाला है। अब्बे को फौत हुए अभी भंगी खां और अब्बा करीब करीब फौत हुए थे। अब्बे की मैयत को निकालना है, रात का वक्त तय हो गया, कब्र खोली, लाइटें साथ थीं। कब्र को खोलते ही ना ऐसे देखा और बेटों ने कहा चाचा कब्र बंद करो, क्योंकि अब्बे की हालत बदल चुकी थी। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुझे कफन चोर आया, उसने तौबा की। मैंने पूछा लोगों की मैयतें? कहा कब्र में जाने के बाद कोई खिंजीर, कोई कुत्ता, कोई बंदर और कोई क्या बन जाता है अपने अमाल की वजह से, जिसको कुरान भी कहता है उलाइका कलानाम बल हुम अजल। कुरान भी कहता है। काम ने कब्र को छोड़ दिया, सुबह कब्र नहीं थी, पानी ले गया। भंगी खान की कब्र को खोला, भंगी खान की कब्र को जो खोला, भंगी खान वैसे पड़ा हुआ था। बोले असी मरना नहीं गौर पया कोई हो। दुनिया ने भंगी खान कह दिया, अल्लाह ने कहा नहीं ये बादशाह खान है, ये शहनशाह खान है। दुनिया ने उसको भंगी खान कहा। मेरा अल्लाह कहता है नहीं, मेरी नजर में ये शहनशाह है, इसने सारी उम्र मेरे घर की खिदमत की है और कुरान की खिदमत की है। मिट्टी इसको नहीं छूना, इसको नहीं खाना, और मैं दुनिया को दिखाऊंगा। अल्लाह ने जानबूझ के ये मंजर दिया। खोलो कब्र, उधर भी खोलो उधर भी खोलो। जो बादशाह खान था उसकी कब्र खोलो, जो भंगी खान था उसकी कब्र खोलो। बादशाह खान की कब्र देखी नहीं गई और सुबह दरिया ले गया और भंगी खान को निकाला, बिल्कुल ठीक पड़ा हुआ था, और उसके बाद उसको आगे मुंतकिल किया। हाँ, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं, अल्लाह के आशिक कहां मरते हैं। कुरान से निस्बत, कुरान से मोहब्बत। और मुझे मलिक नवाज रहमत एक बात और भी कही, कहा कि हमने उन कब्रों को भी, कुछ कब्रें ऐसी हैं खोली कि वो तंदूर की तरह सुर्ख थी, इतनी उनमें आग थी। और कहा कि जो हामला खवातीन डिलीवरी के दौरान, ज़चगी के दौरान जो खवातीन मरी, उनका जिस्म बिल्कुल ठीक पड़ा था। मैंने आंखों से देखा, कहने लगे, क्योंकि सरकार मदीने वाले का फरमान है जो खातून ज़चगी के दौरान मरती है वो शहीद है। कुरान को रोज देखो, कुरान को रोज पढ़ो, कुरान की मोहब्बत हो, कुरान वालों से मोहब्बत हो। दुनिया की सारी गलतियां कोताही होती हैं, कुरान वालों के तनख्वाहें। मुझे अभी यहां एक साहब बैठे हैं, कहने लगे मस्जिद का खादिम हूं, 4000 तनख्वाह देते हैं, 19 मन दाने साल के बाद देते हैं, 4000 महीना देते हैं। ये मेरा कसूर है। मैंने मस्जिद के खादिम से, मस्जिद के मुअज्जिन से, मस्जिद वालों से, उनसे आज तक उनको हदिया नहीं दिए, उनकी तवज्जो नहीं की। घर में कुरान कारी साहब पढ़ाने आते हैं, वही एक फिजिक्स पढ़ाने आता है, ओ लेवल ए लेवल का एक सब्जेक्ट पढ़ाने आता है, उस एक सब्जेक्ट वाले को कितने पैसे देते हैं, और कुरान वाले के साथ हमारी क्या कदरदानी है, कुरान वाले के साथ हमारा क्या अदब है, और कुरान वाले के साथ हमारा क्या इकराम एहतराम, और उसकी तनख्वाह, उसका महाना कितना है। सोचो। ए लेवल ओ लेवल के एक सब्जेक्ट के क्या देते हैं। वो ए लेवल ओ लेवल तो दुनिया ही काम में नहीं आता। कहा डिग्रियां हैं नौकरी नहीं, डिग्रियां हैं कारोबार नहीं, डिग्रियां हैं रोजी नहीं। हाँ, अल्लाह वालों, कुरान से मोहब्बत, कुरान वालों से मोहब्बत, कुरान से इश्क, कुरान का देखना, पढ़ना, समझना, बिन समझे। और हर किसी का तर्जमा ना पढ़ो, हर किसी की तफसीर ना पढ़ो। ख्याल करना, मैंने बड़ों बड़ों को गुमराह होते देखा, दीन से हटते देखा, हर बंदे की तफसीर पढ़ना शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी मैं तर्जमे से कुरान पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा तर्जमा छोड़ तो कुरान पढ़। हाँ, तजवीद हो, जेर जबर ठीक हो, इसको सीख, कुरान पढ़। तर्जमा ठीक है, मैं इनकार कहां करता हूं,
لیکن کتنے ترجمے اور تفسیروں نے لوگوں کو اللہ اس کے حبیب سے دور کر دیا، اللہ اس کے حبیب سے دور کر دیا۔ ورنہ کچھ لوگ ایسے ہیں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں، انہیں کہ آج ختم قرآن۔ میں قدرت کا نظام دیکھے، میں یہاں سے گیا، کچھ مسجدیں بنانے کی اللہ نے توفیق دی ہے، انہوں نے کہا حضرت آپ ہماری مسجد میں ہیں، ایک پاؤ باقی قرآن رہتا ہے پارا، ایک پاؤ پڑھ کے ہم دعا کر دیں گے۔ میں شامل ہو گیا، اس بندہ خدا نے جو پڑھنا شروع کیا جھوم جھوم کے، پہلی رکعت 10 منٹ کی، 12 منٹ کی، 15 منٹ کی، ورتل القرآن ترتیل۔ وہ تو کوئی 1.5 گھنٹے، پونے 2 گھنٹے کے بعد ایک پاؤ ختم ہوا۔ آپ کہیں بیان کر، میں نے کہا السلام علیکم، میری اگلی سفر ہے، منزل ہے۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، حال کا امر کیا ہے؟ حال کے امر کو پہچاننا، اس کا نام دین ہے۔ حال کا امر کیا ہے؟ اس کا نام دین ہے۔ تو میری درخواست آپ سے ہے، قرآن سے محبت کریں، قرآن سے الفت کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں۔ رحیم یار خان کے قریب ایک ہندو خاندان رہتا تھا، رحیم یار خان کے قریب، اور اس نے اپنے دوست کو تار بھیجی، ایمرجنسی ایک ہوتی تھی تار، اسے کو تار کہتے تھے، تار بھیجی کہ ہم ہندو فلاں جگہ جمع ہو رہے ہیں، میں وہاں سے نہیں آ سکتا، میری بیوی ہی ہے، بچہ تو اولاد تو ہوا نہیں، اس کو تو میرا بچپن سے 55 کا دوست نیک شریف ہے، اس کو لے کے فلاں جگہ کیمپ میں پہنچا دینا، کیمپ میرے اور ہندو بھی رشتہ دار ہیں، وہ ہندو رشتہ دار بھی سارے اکٹھے ہو کے وہاں پہنچ جائیں گے، وہیں انڈیا میں پہنچ جائیں گے۔ تار پہنچا تو وہ تار لے کے آیا، اس کا نام موہنی تھی۔ تانگے والے سے بات کی، تھوڑا بہتا جو سامان اٹھانا تھا اٹھایا، اٹھانے کے بعد سامان، تو اس کی نیت خراب تھی، اس کا جذبہ خراب تھا، اس نے موہنی کو بٹھا کے کسی ویرانے کی طرف گئے۔ موہنی بولی کہ بھائی جان یہ راستہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ راستہ تو وہ کیمپ کی طرف نہیں جا رہا، میری ساری زندگی اسی رحیم یار خان میں گزری ہے، اسی شہر میں گزری، لیکن ویرانے میں جا کے اس نے موہنی پہ ہاتھ ڈالا، وہ چیخی، اس کی آنکھوں میں شیشے تھے، اور تانگے والا بھی ساتھ شامل تھا، حتیٰ کہ کشمکش میں کپڑے پھٹ گئے اور وہ اس کے قریب نہ آ سکا۔ تو اسی اسنا میں موہنی کے گلے میں ایک تعویذ تھا، اس نے کھینچ کے تعویذ اس کے سامنے کیا، میری اولاد نہیں ہے، میں ایک مسلمان پیر کے پاس گئی تھی، اس نے یہ قرآن کا تعویذ لکھ کے دیا ہے، تجھے اس تعویذ کا واسطہ ہے، مجھے رسوا نہ کر۔ لیکن اس نے توجہ نہ کی، اس نے ہاتھ ڈالا ہی تھا موہنی کے بازو میں تو اس کی گرپ ختم ہو گئی اور وہ نیچے گرا اور اس کے منہ سے جھاگ نکلنے لگی، اور موہنی خوف زدہ ہو کے، موہنی کے ہاتھ میں تعویذ تھا قرآن کا، خوف زدہ ہو کے کہنے دیکھا کالا سانپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی ڈس کے جا رہا تھا، اور تانگے والا تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اسے اپنا انجام نظر آیا۔ تانگے والے نے سر سے اپنا کپڑا صافہ اتارا، موہنی کو دیا، موہنی نے جسم پہ لپیٹا، اس کو تانگے پہ بٹھا کے اور وہیں کیمپ میں چھوڑ کے معافی مانگ کے آیا، اور اس کی لاش وہیں پڑی تھی، اور سانپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ کیوں؟ ہندو بھی کہہ رہا ہے اس قرآن کا واسطہ ہے، ہندو بھی کہہ رہا ہے یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی عظمت۔ میں اس بندے سے ملنے گیا، ایکشین تھا، اس کا بھائی اب بھی ایم این اے ہے اور اکثر ایم این اے بنتا ہے، شریف آدمی ہے۔ میں ملنے گیا، میں نے کہا میں آپ کے منہ سے یہ واقعہ سننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا میں واپڈا میں ایکشین، ایک بندے نے رشوت لی، میرا چھوٹے کوئی لیول بندے آ گئے، انہوں نے کہا انہوں نے رشوت لی، میں نے کہا دیکھ اعتراف کر لے، یا چھوٹی سی سزا لکھ دوں گا یا ان سے معافی کرا دوں گا۔ انہوں نے کہا میں نے لی ہی نہیں، وہ مشہور تھا پیسے لینے میں، مشہور تھا۔ آخر کہنے لگا میں قرآن اٹھاتا ہوں، میں کہا نہ اٹھا، قرآن نہ اٹھا۔ انہوں نے میں قرآن اٹھاتا ہوں، خود قرآن اٹھا کے لے آیا،
कहने लगा मैं रिश्वत नहीं ली। और मुझे उस साहब ने बताया, उनका नाम अजमल साहब था। कहने लगा तीसरे दिन मैं उसका जनाजा पढ़ रहा था। जज बैठा था, जज बैठा था, और जज के सामने 302 कत्ल का एक मुजरिम खड़ा था, और वो बार बार कह रहा था कि मैंने कत्ल नहीं किया, मुझसे कुरान उठवा लें, मैंने कत्ल नहीं किया, मैंने कत्ल नहीं किया। जज कहता था कि तूने किया है या नहीं किया, लेकिन तुझसे कोई और खता हुई है। एक गधी है, गधी खूनम खून मेरे सामने आती है और इतना बड़ा मुंह है, और कहती है अगर तूने इसको छोड़ दिया तुझे खा जाऊंगी। खौफनाक चेहरा है। बता, ये उसने बाद में बताया। उसने कहा बता कोई जुर्म। सोचते सोचते कहने लगा मैं घास काट रहा था, पड़ोस वालों के गधा गधी रोज आते थे, घास खाते थे। मैंने एक दफा रोका, 2 दफा रोका, फिर रोका। आखिर गधी के ऊपर की खाल पकड़ के मैंने दराती से जो ऐसे मारा, उसकी खाल को काट दिया, और वो खूनम खून वहां पहुंची। बस उस बद्दुआ, बेजुबान की बद्दुआ लगी। मैं बेगुनाह इस मुकदमे में हूं। और जज कहने लगा सारे सबूत बेगुनाह हैं, पर मैं तुझे फांसी देता हूं, ये मुंह मुझे खा जाएगा। और वो फांसी पे लटक गया। कुरान, उससे मोहब्बत, उससे इश्क, उसके साथ ताल्लुक, उससे दोस्ती। यहां आज भी मियानी साहब का पीछे कब्रिस्तान है। हर रमजान में कुरान कब्र से पढ़ा जाता है, मैंने खुद सुना है। और जो शबे कदर, लैलतुल कदर होती है, उसमें सूरत रहमान पढ़ी जाती है। इस बात की मशहूर निशानी है, इस कब्र में जब सूरत रहमान पढ़ी जाएगी, वो रात लैलतुल कदर होगी, शबे कदर होगी। कई बुजुर्गों ने अपने वालिद के बारे में, हजरत वली हसन टोंकी थे, उन्होंने लिखा कि मैं फौत हो गया मेरे वालिद, उनकी कब्र से। हजरत मूसा रूहानी थे, वो कहने लगे कि मेरे वालिद की कब्र से कुरान की आवाज आती थी। आज के बाद फैसला करें, मैं भी आप भी कुरान से दोस्ती करें, उठाया करें, इसको देखा करें, इसको चूमा करें, इसको पढ़ा करें, रोज पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, कोई हर्ज नहीं, रोज पढ़ें। जिंदगियों में बरकतें और बहारें आएंगी, जिंदगी में इज्जतें और शान और शौकतें आएंगी, और हमेशा की खैरें और बरकतें आएंगी। आपको जाते हुए 2 तोहफे दे रहे हैं। हुरूफ तहज्जी का ये नक्श सारी जिंदगी का तोहफा, और साथ उसका तरीका। ये 2 कागज आपको मिले होंगे। बहुत बेहतरीन तोहफे हैं, बहुत बाकमाल तोहफे हैं जो आपको साथ दे रहे हैं। जिनको अगर नहीं मिला तो वो हजरात इस्तकबालिया से ले लें। बहुत कमाल तोहफे हैं, हुरूफ तहज्जी का नक्श और ये उसका तरीका। और हमारे जो पूरे रमजान में सूरत कौसर के जो अमल हैं, पैकेज हैं, वो भी इसी थैली पे करें। ये बहुत बाबरकत थैली, बहुत सादतमंद थैली है और अल्लाह की नेमत है। इसको दाएं हाथ में थैली रखेंगे और दाएं हाथ में कटोरा रखकर, और हम सिर्फ 45 बार अव्वल आखिर एक दफा दरूद शरीफ अपने गमों, अपने दुखों, अपनी मुश्किलों, अपनी नाकामियों, अपनी परेशानियों का तसव्वुर करते हुए अब हम सारे बैठ के इज्तिमाई तौर पर 11 बार सूरत कौसर पढ़ें। इस बरकत वाली थैली पे हमने दम करना है और ये इज्तिमाई अमल करना है। अव्वल आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ और 11 बार पढ़ें, सूरत कौसर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इन्ना तो इन्ना कल कौसर। जिनके पास थैली नहीं वो बटवे को सामने रख के पढ़ लें, पढ़ें इन्ना तो इन्ना कल कौसर। इन्ना तो इन्ना कल कौसर।
मुबारक हो, बरकत वाली थैली, बरकत वाला निजाम सारा। मुजरिमाना हाजिरी है, रोज मुजरिमाना हाजिरी, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा और अमल है। मुजरिमाना हाजिरी में रोज अल्लाह के सामने मुजरिम बन के, फरियादी बन के, रोज अल्लाह के सामने कि अल्लाह हमसे बड़ा कोई मुजरिम नहीं, तुझसे बड़ा कोई करीम नहीं, और हम मुजरिमाना हालत बना के तेरे सामने तेरे मुबारक नामों से मदद मांगते हैं। हम अपने आप को मुजरिम पेश कर रहे हैं, तू शहनशाह और करीम है। तो मुजरिमाना हाजिरी में अल्लाह के सामने पेश होके पढ़ेंगे हम अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, 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 अल्लाहुम्मा बिस्मिका कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस्मिका कहफ कितमीर, अल्लाहुम्मा बिस अपने बदन पे, पूरे बदन पे फेर। हमारा अब सूरज ग्रहण के अमल मैं आपकी खिदमत में उसकी वजाहत अर्ज करूंगा। सूरज ग्रहण के 3 अमल हैं। मुझे मेरे आबाब बता रहे थे कि बाज लोगों ने नेट पे यही अमल लिए हैं और बकायदा उन्होंने फीस रखी है, पैसे रखे हैं। कितने पैसे लगेंगे सूरज ग्रहण का अमल करवाएंगे, इतना माल लगेगा सूरज ग्रहण का अमल करवाएंगे, इतने पैसे लगेंगे सूरज ग्रहण का अमल कराएंगे। हत्ता कि आपके 10 रुपए गुड़ की डली पे लगे, मुझे वो भी तकलीफ होती है कि 10 रुपए गुड़ की डली पे क्यों लगे। तस्बीह खाने को सदा मेरा रब देने वाला बनाए, देने वाला बनाए, अल्लाह देने वाला बनाए, और अल्लाह हमेशा ऊपर वाला हाथ इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज ग्रहण के अमाल हैं। आप चाहे तीनों कर लें, चाहे कोई एक कर लें, बहुत ताकतवर अमल है। एक बात बता दूं, जो सूरज ग्रहण के अमल करेगा बहुत बलाएं आफतें आती हैं। आखिर कोई वजह तो थी ना, जब सूरज को ग्रहण लगती थी, मेरे हुजूर आका कमली वाले सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो हैं, वो मस्जिद की तरफ फौरन मुतवज्जे होते थे। मस्जिद की तरफ मेरे हुजूर मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होते थे और मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होके मस्जिद में तशरीफ ले जाते थे। परसों है, मुझे वक्त उनसे मंगवाएं, वक्त तो बताना चाहिए था। ये सूरज ग्रहण का कागज आपके पास होगा, मिल गया होगा। परसों है, आपको दिया इसलिए जा रहा है ताकि आप पहले से इसकी तैयारी करें, और यहां भी आप कर रहे हैं। ज़ाहिर आप यहां का मजमा यही करेगा, और जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अपने वक्त और मकाम के मुताबिक करेंगे। जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अपने वक्त और मकाम के मुताबिक करेंगे। जो पूरी दुनिया के लोग हैं वो अपने वक्त और मकाम के मुताबिक करेंगे। एक बात फिर अर्ज करूं, सूरज ग्रहण का अमल करने वाला बलाएं, आफतें, मुसीबतों से बचता है और बहुत ज्यादा तकलीफों से बचता है। उसकी नस्लें, सूरज ग्रहण के अमल करने वाले की नस्लें लूली, लंगड़ी, अपाहज नहीं होती, याद रखिएगा। ये मैं तारीख को उठा के बता रहा हूं और पूरे वाकयात हैं मेरे पास। और सूरज ग्रहण के अमल को करने वाला अल्लाह पाक उसकी नस्लों में विलायत के ताजदार, सखावत के ताजदार और दानाओं के ताजदार अल्लाह बनाता है, और उसको अल्लाह खुद मुसीबतों परेशानियों से दूर करता है। अल्लाह उसकी तकलीफें खत्म करता है, अल्लाह उसके दुख खत्म करता है। सूरज ग्रहण के अमल कभी ना करना भूलिएगा। पैसे ले रहे हैं, मुझे हैरत होती है। बहरहाल जो पैसे ले रहे हैं वो भी अच्छे हैं, और हमारे मुंह में सिर्फ एक लफ्ज है, सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका
وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين اللهم واقعة كواقعة الوليد اے اللہ رمضان کی ساری خیریں عطا فرما اور رمضان کی ساری برکتیں عطا فرما حروف تہجی کی برکتیں عطا فرما حروف تہجی کی خیریں عطا فرما حروف تہجی کا نور عطا فرما اور صلاۃ کن فیکون جنہوں نے پڑھی اور پڑھتے رہیں گے جو مرادیں دل میں مانگی جو چاہتے دل میں مانگی جو مرادیں دل میں مانگی اللہ قبول فرما اور جنہوں نے میری نسلوں تسبیح خانے کے لیے 100 رکعتیں پڑھی اس سے بھی زیادہ پڑھی قبول فرما اور اس کی برکتیں انہیں بھی عطا فرما ان کی نسلوں کو بھی عطا فرما اور پوری امت کو بھی عطا فرما اور سارے آمین کہنے والوں کو بھی عطا فرما اے اللہ تونگری کشکول کی برکتیں عطا فرما اور تونگری کشکول کے عمل کو قبول فرما اور یا قادر و یا نافع کی ہمیشہ کی برکتیں عطا فرما یا قادر و یا نافع یا قادر و یا نافع قادر و یا نافع یا قادر و یا نافع یا قادر یا نافع اللہ اس کی برکتیں اللہ اس کی خیریں عطا فرما اور 4 رنگی تعویذ کو قبولیت عطا فرما یہ وہ نقش اور تعویذ ہیں جو صدیوں سے آزمودہ ہیں اور برکت والی تھیلی میں صدا اپنی برکتیں رکھ صدا اپنی برکتیں رکھ صدا اپنی برکتیں رکھ اور سورت رحمان کے دھاگے میں سورت رحمان کا نور داخل کر دے اور برکتیں داخل کر دے اس میں شفا داخل کر دے اس میں اپنی عطا داخل کر دے اے اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے آنسو بہ رہے ہیں اور کتنے ایسے ہیں جن کی ہچکیاں اور سسکیاں ہیں اور کتنے پردیسی ایسے ہیں جو گھروں کی آس لگائے بیٹھے ہیں اماں کا فون آیا ابے کا فون آیا بچی کہنے لگی ابا میرے لیے آنا تو غبارہ لیتے آنا اور میرے لیے آنا تو ایک گاڑی لینے آنا کہنے لگا بیٹی میں تو بخت لینے آیا ہوں میں تو برکت لینے آیا ہوں میں تو یہاں خیریں لینے آیا ہوں تو ساری عمر پھر برکتوں میں کھیلے گی بیٹی تو نکرانی نہیں بنے گی تو رانی بنے گی بیٹی تو نکرانی نہیں بنے گی تو رانی بنے گی مولا یہ پردیسی انہوں نے پورا رمضان چٹائیوں پہ گزار دیا اور پورا رمضان اپنے دل پہ جبر کیا اور صبر کیا ان کے دل نے بہت امیدیں مانگی ان کے اندر نے بہت امیدیں چاہی ان کی طبیعت میں بہت ولولے اٹھے ان کی زندگی میں بہت خواب دیکھے اللہ سارے خواب انہوں نے چکنا چور کر دیے تیرے نام کے لیے بھوکے رہے تیرے نام کے لیے پیاسے رہے تیرے نام کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا پر چھوڑا اے میرا اللہ ان پردیسیوں کی آج دعائیں قبول کر لے اور ان کی حاضری قبول کر لے اور ان کے سارے عمل قبول کر لے اور خضری تعویذ کی تقسیم ہوئی ہے جن کو نہیں ملا ان کو بھی دے دے اور جن کو ملا ہے ان کو برکتیں خیریں وسعتیں راحتیں رحمتیں عافیتیں دے اور جنہوں نے آخری عشری کی تحریریں لکھی ہیں اللہ ان کے قلم کے ایک ایک لفظ کے بدلے
احد پہاڑ جتنی نیکیاں عطا فرما، ان کے قلم کے ایک ایک حرف کے بدلے ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ان کے قلم نے جتنے نقطے دیے ہر نقطے کو جنت کا ایک محل بنا، اور جتنے میں نے ان کو 3 عمل بخشے ہیں اللہ ان کو میری نسلوں کے لیے بھی ان کی نسلوں کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنا، خیروں کا ذریعہ بنا، عافیتوں کا ذریعہ بنا اور قبولیت کا ذریعہ بنا۔ اللہ جو پورے رمضان میں یہاں خدمت کرتے رہے، ان کے پہلو نہیں سو سکے، کسی کی 1 گھنٹہ نیند، کسی کی 2 گھنٹہ نیند، بس نیند سے بھی تھکے رہے اور مخلوق کی خدمت سے بھی تھکے رہے، برتن دھوتے رہے، جھاڑو دیتے رہے اور آنے والے مجمع کی سنتے بھی رہے، سہتے بھی رہے، سنتے بھی رہے، سہتے بھی رہے۔ اللہ ان خدمت والوں کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے، اپنی شان کے مطابق جزائے خیر دے۔ آج جن کے نکاح ہوں ان کے گھر آباد کر دے، اور جن کے نکاحوں میں تاخیر ہے ان کے لیے جوڑے عرشی بنا دے، عرشی بنا دے، عرشی بنا دے۔ ہماری اٹھنے والی دعائیں قبول کر لے، ہماری آمین قبول کر لے، ہمارے من کے اندر کی چاہتیں قبول کر لے، ہمارے جذبے قبول کر لے، اس تسبیح خانے کی خیروں کو قبول کر لے، اس تسبیح خانے کو قیامت تک خیر بانٹنے والا بنا دے۔ دائیں بائیں سے وسعت دے دے، دائیں بائیں سے برکت دے دے، دائیں بائیں سے عافیت دے دے اور دائیں بائیں سے خیریں دے دے۔ اللہ ہمیں خیریں دینے والا بنا، خیریں بانٹنے والا بنا، امن بانٹنے والا بنا، رواداری اور محبتوں والا بنا۔ آج بڑی